Hi friends, I'm your soul sister from Mam's channel, and I am here to share some of my downloads and some of my work which I'm doing on myself, so that you can also grow with me. uh, so basically I will talk today about कॉन्शियसनेस. मैं आपसे कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने वाली हूँ. तो मेरे जो वीडियोस है वो मे बी 2 पार्ट्स में रहेंगे. सो फर्स्ट जो मुझे चीज़ें मेरे कॉन्शियसली मुझे समझी है वो है कि इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट बॉडी, माइंड एंड सोल, we are made of these three things, and these three things has to be aligned. Alignment is this: you have to be in a straight line like this. You can't, if you are in this type of thing, this is distortion. If you are in this type of things, this is distortion. So we are here to correct this thing. अगर आप ये चीज़ करेक्ट करते हो तभी आप लोग यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस जर्नी. ओके, तो अलाइनमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इट इज़ टू बैलेंस एंड टू रिमेन कॉन्शियस. ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है, इसके ऊपर एक डिफरेंट टॉपिक है, एंड आई विल कम, आई डोंट प्रॉमिस, बट जितना भी मुझे समझेगा आई विल डेफिनेटली शेयर अबाउट कॉन्शियसनेस. सेकेंड पॉइंट है अलाइनमेंट का इम्पोर्टेंस इज़ दैट आप ओपन होते हो चेंज के लिए, एंड यू एक्सेप्ट द 3D रियलिटी, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट इट you change it, and that happens with your willpower. And second is surrender to the divine. Okay, and the third is it opens your intuition, because you are working on your soul, your third eye, and when it opens your to your intuition, and when you act, it will give you fantastic manifestation. So if you want to be a manifester, if you want to be a creator as a child of the Almighty, you have to, this is must. Body, mind and soul is must. The alignment is must. If you are out of it, you will not be able to attract any outcome. You will not even be able to attract the purpose of your life, which is the soul mission for which we are born. Okay, so why to align, and what is needed to get aligned. तो ये जानने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि अलाइन क्यों होना है और उसके लिए क्या लगने वाला है, तो वाई यू विल अलाइन. फर्स्ट इज दैट योर विल पावर, योर इच्छा शक्ति इज मस्ट. अनलेस you have it, you will fall back into from consciousness, that is 5D or say 6D or say 7D, to your old consciousness, that is unconsciousness, that is right now जो हमारी अर्थ में है. Second is if you want to know the real want to know the real soul which lies into your body. Third is alignment gives us power to be the creator. Okay, because हम इस body के outside we have strong powers which we don't know right now. So post alignment what we get these powers, but we get it in this body. Okay, so we become the creators, and which can be used for the highest good of first to you by fixing the triangle of mind, body, soul. Second is by dedicating yourself to mother earth, जो last time मैम ने हमें बताया था. And third is that your multiple DNA timeline is getting healed because of the alignment, because you are not making the same mistakes, and you are not repeating the same patterns. Okay, so this is the these are the must things which you should know अलाइन होने के पहले. और अलाइन होने के बाद के जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन राइट मेक द नोट्स ऑफ इट, सो दैट if whenever you feel down, or whenever you are not getting the desired manifestation, or whenever you are out of sync, negative, you can read this and you can come back to your original power. Fine. Now yes, ये बताना भूल गई मैं कि जब आप अपना DNA हील करते हो अलाइनमेंट के वजह से, योर मल्टीपल DNA टाइमलाइन इज हील्ड, you release multiple souls from the bandhan which you have with them. So you create a positive karma, you release a negative karma. So now you are qualified to become an ascended soul, because हम लोगों को ascension के बहुत ट्रायल्स हर फुल मून, हर ल्यूनर मून पे देने पड़ते हैं. ओके, तो ये है बेनिफिट्स ऑफ अलाइनमेंट. एंड सेकेंड इज़ द वेज टू अलाइन, वाई टू अलाइन. ये अगर हमारा क्लियर है, हमें अलाइन होना है, तो हम आगे बढ़ेंगे. कैसे, अभी हाउ टू अलाइन. ठीक है, तो ये मैंने खुद के रूटीन में से निकाला है. फाइन. सो सी, अलाइनमेंट के लिए तो मैम का इनर वर्क इज़ यानी मस्ट है. मैम का इनर वर्क
which works consciously also and subconsciously also, because she talks a lot about consciousness, but we don't follow it. We do lose it when lunar cycles come. फुल मून पे भूल जाएंगे हम लोग, भूल जाएंगे अमावस्या पे, बिकॉज प्लैनेट्स हैव मोर इफेक्ट. व्हेन वी आर कॉन्शियस प्लैनेट्स विल लूज इट्स इफेक्ट. ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन डिटेल में करूँगी. देखिए कैसा होता है. हमारी बॉडी है जो हम देख सकते हैं, एक हमारा माइंड है जो कंटिन्यूसली बड़बड़ करता है, तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव. पॉजिटिव है तो हम खुश हैं, निगेटिव है हम तो डिस्टर्ब्ड है. ठीक है, और ये माइंड और सोल का ना कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, सी दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ माइंड, दिस इज़ सोल. ठीक है, बॉडी जो है, आपको मेम्ब्रेन पता है, जो छन्नी होती है जो हम दूध के लिए यूज़ करते हैं टू रिमूव द निगेटिव पार्टिकल्स. ओके, तो बॉडी, माइंड और सोल में दिस इज़ द मेम्ब्रेन. दिस ऑरेंज कलर का इज़ द मेम्ब्रेन. जो भी बॉडी में आता है, गुड हो बैड हो, इट विल परमिएट. ये पूरा परमिएबल होता है. जो आप अगर बॉडी में अच्छा डालोगे तो इट विल गो टू माइंड, इट विल गो टू सोल. इट इम्पैक्ट्स बोथ. ओके, सो आई एम ओनली टेलिंग यू द गुड थिंग्स बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा. तो गुड फूड है. देखिए बेसिकली इंद्रिय जो होते हैं ना, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप उसको क्या देते हो, आप तो उसको अच्छा दोगे तो अच्छा ही परमिएट होगा. अच्छा नहीं देते हो तो नेगेटिव परमिएट होगा. तो मैं आपको अच्छा बता रही हूँ. गुड फूड, गुड केयर ऑफ द बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग. सेकेंड इज़ क्लीनलीनेस विच इज़ मस्ट. नो अब्यूजिव टॉक्सिन्स लाइक ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग. आई नो कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कम उम्र के लोग भी देखते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है. इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. तो एंड ऑल्सो बैड मूवीज़, निगेटिव टीवी मीडिया के बारे में जो भी हम सुनते रहते हैं दिन भर, गॉसिप्स है, आप सुनोगे ईयर से, कहोगे मुंह से, वॉट एवर योर सेंस ऑर्गन्स विल टेक और गिव विल परमिएट इनटू माइंड एंड सोल. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि अगर आप फिजिकल वे में थॉट्स, विजुअल्स, फूड को गुड तरीके से डालते हो, बैड तरीके से डालते हो, इट विल इम्पैक्ट योर माइंड इन पॉजिटिव और निगेटिव वे बाय गिविंग यू अ. अगर पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव ही माइंडसेट रहेगा और आपका अट्रैक्शन बिल भी पॉजिटिव रहेगा. आप ये एक आप रेशो बनाओ पॉजिटिव इज टू निगेटिव का. अगर आपका निगेटिव मैनिफेस्टेशन 70 है और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन या फिर जो भी रियलिटी, मैनिफेस्टेशन का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे. मैनिफेस्टेशन का मतलब है व्हाट यू आर एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ. तो अगर 30% है आपका पॉजिटिव, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ट्रायंगल में, तो उसको कॉन्शियसली करेक्ट करो. ओके, नाउ इट विल इम्पैक्ट योर सोल बाय पॉजिटिव, निगेटिव. अगर वाइट है, दिस आर माई टर्मिनोलॉजीज जो मेरे को, मैं लिखते समय जो भी मुझे डाउनलोड हुआ है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, बिकॉज आई राइट ऑफन व्हेन डाउनलोड जब आते हैं. तो वाइट सोल, एक ब्लैक सोल. तो वाइट सोल क्या होता है, जो प्योर होता है, जो डिवाइन से कनेक्टेड होता है. ठीक है, जो ब्लैक सोल होता है वो करप्टेड होता है, वो इन्फ्लुएंस में होता है प्लैनेट्स के, होरा के, सिचुएशन के और पास्ट कर्मा के. तो नाउ आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, तो वाइट कर्मा जो, फर्स्ट विल सी द ब्लैक सोल. ओके, तो ब्लैक सोल जो है वो आपकी जो डेस्टिनी है, विच इज़ एन ओल्ड रिकॉर्ड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रारब्ध बेस्ड ऑन द पास्ट कर्मा. सो यू विल लीव दैट सेम डेस्टिनी. सो if you go to an astrologer, he will tell that you will have this problem, this problem, this problem. Yes, you will have that problem because you are not working on your triangle, that is body, mind, soul, not on your alignment. Okay, so you will again get into that cycle of life and death. Fine. Now if you are a white soul, if you are a pure atma, you will have bliss, you will have love, unconditional love, joy, enlightenment, and you will return back and become one with the Almighty. Okay, so moral of the story is, अपने माइंड, बॉडी, सोल को देव बनाना है या दानव बनाना है. यू हैव टू चूज इट कॉन्शियसली. ठीक है, सो दिस वॉज माई वन वीडियो अबाउट कॉन्शियसनेस विच कम्स थ्रू माइंड, बॉडी, सोल. एंड आई होप कि अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करते हो तो ये डाउनलोड सब लोगों के काम बहुत आ सकता है, स्पेशली बिफोर द फुल मून. स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग एंड बी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस फुल मून. Thank you, ma'am. Thank you very much for motivating me to make this video. Thank you.